Morning to all of you. So we were studying chemistry of class 9th, and in that today we will discuss about the change in states of matter of chapter matter in our surrounding. Till now we had discussed that there are three different states of matter, although there are more, but here we have to discuss about only three, and that is solid, liquid and gas. And we discussed that what is the effect of temperature. Let's repeat that. Suppose there is a substance that is solid in nature and you are heating it. Upon heating, the particles will gain kinetic energy. तो ये particles हैं, इन particles के पास energy आएगी, किस form में आएगी? Kinetic energy के form में. Kinetic energy का मतलब होता है energy due to motion of an object. तो इस वजह से इन particles का motion बढ़ेगा, इनका movement increase होगा, और as soon as the movement increase to that limit कि इनके बीच का force of attraction टूट जाएगा, the particle or the matter will change its state. अगर यहाँ पे इनका force of attraction टूट गया तो solid will convert into liquid. अगर आप इस liquid को भी heat करते हैं और इन particles की kinetic energy जैसे ही इस force of attraction से ज़्यादा होगी तो again the liquid will convert into gas. So this is the effect of temperature. अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं, अगर आप गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो अगेन काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज एंड द पार्टिकल्स विल कम क्लोज एंड द गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. सिमिलरली लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू solid. This is the effect of temperature or what happens when we increase or decrease the temperature. Now what are these processes called as? Means if you are heating solid and solid is getting converted into liquid, is there any name for this process? So yes, when we heat solid, solid get converted into liquid. The process of converting of solid into liquid is called as melting. और अगर आप liquid का temperature कम कर देते हैं तो liquid will get converted into solid and this process is called as freezing. Similarly, conversion of liquid to gas upon heating, that is called as vaporization, and the conversion of gas to liquid, that is called as condensation or freezing. And there are certain instances when solid directly converts into gas, that is called as sublimation. One such example is use of camphor. We use camphor to prevent any sort of infection in the clothes. So in camphor, it is solid in nature and it directly converts into gas without coming into liquid stage. So this is called as sublimation. Now let's understand what happens in the conversion of solid to liquid. The process of conversion of solid to liquid is called as melting, and there is one more term for that, that is called as fusion. इस process को melting या फिर fusion भी कहा जाता है. The process of conversion of solid into liquid, that is called as fusion. अब suppose you are heating ice. The temperature at which ice starts melting, or let's say ice starts converting into water, that temperature is called as melting point. So for water, the melting point is 0 degrees Celsius. That means at 0 degrees Celsius, the ice will start converting into water. Okay. Now there is a term that is called as latent heat of fusion. First you need to understand what do you mean by latent. लेटेंट मतलब हिडन, छुपी हुई, कुछ भी कह सकते हैं. तो लेटेंट हीट इज बेसिकली द हिडन हीट इन अ सिस्टम, दैट हीट विच इज नॉट विजिबल बट विच इज रिक्वायर्ड इन अ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स फ्यूजन होता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. तो टेक्निकल डेफिनेशन इज व्हेन यू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू वाटर. मतलब आप 1 किलोग्राम सॉलिड को, नॉट वाटर, हियर वी कैन से लिक्विड ऑल्सो, वाटर तो एक एग्जाम्पल का हो गया बस यहाँ पे. जब आप किसी 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को कम्प्लीटली लिक्विड में चेंज करते हैं तो इसको चेंज करने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज latent heat of fusion. Suppose I have, see here, this setup represents a very good example of that. Suppose we are having 1 kilogram of ice here. तो यहाँ पे हमने एक सेटअप लगाया है and this is immersion rod. तो हीट प्रोड्यूस करेगा और इस हीट प्रोड्यूस करने की वजह से वाटर मेल्ट करेगा. ये जूल मीटर है. दिस इज अ डिवाइस विच विल मेजर द अमाउंट ऑफ हीट. सो टू कन्वर्ट दिस 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड,
the amount of heat required, that is called as latent heat of fusion. Okay, now what is the use of this latent heat of fusion? Let's understand by this example. You must have seen that during an injury the sportsmen use ice pack instead of cold water. ice pack पैकेट्स में कुछ जेल आता है जिसको आइस पैक कहते हैं. नॉर्मली वी से सॉलिड आइस पीपल यूज इन इंजरी एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर इन द सेम टेम्परेचर. अगर आइस और वाटर सेम टेम्परेचर में है तब भी हम आइस को यूज़ करते हैं इंजरी में, कोल्ड वाटर को यूज़ नहीं करते. वाई? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. और द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस. आपने बहुत बार फ्रीजर से जब बॉटल निकाला होगा एंड यू कीप इट इन सनलाइट फॉर सम टाइम, यू सी दैट देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर. तो अगर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो जितनी देर तक आपने उसको धूप में रखा तो वो हीट कहाँ जा रही है? इन दोनों में जो लॉजिक लगता है वो लगता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का. नाउ व्हाट हैपेंस, यू नो दैट आइस इज अ सॉलिड. तो आइस क्या करती है? इट विल एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट. मैं कहूँगा आइस विल एब्जॉर्ब हिडन हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट. आइस जो इनिशियली हीट को एब्जॉर्ब करेगी वो लेटेंट हीट के फॉर्म में होता है. तो एज आई टोल्ड यू, लेटेंट हीट इज हिडन हीट. So now what happens when it absorb heat, it is using that heat to break bonds between the particles of ice. अब you know that ice is solid in nature. तो उन solid के particles के बीच का bond तोड़ने के लिए ये heat use होगी. तो क्योंकि ये heat bond को तोड़ने में use हो रही है तो simply what is happening, ice is converting into water, but there is no increase in the temperature. Why? क्योंकि ये हीट कहाँ यूज़ हुई है? दैट हीट इज़ ओनली यूज टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द आइस पार्टिकल्स. तो इसकी वजह से आइस एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर. तो जब चोट लगती है तो चोट में क्या होता है? हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो रही है. तो आइस को यूज़ करने का लॉजिक ये है कि आइस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या आइस कैन एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल बिकेम ल्यूक वार्म. But ice can absorb extra heat. So this is the logic of latent heat of fusion. Okay. Now the process of conversion of solid into gas. The process of conversion of solid into gas, that is called as vaporization. और आपने अगर water के respect में इसको पढ़ते हैं तो that process is called as evaporation. Okay. तो again solid gas में क्यों convert होगा? जब आप उसको heat करेंगे. जैसे this is an example. Here we have put a utensil on a burner and you see that upon heating the water is getting converted into steam or vapor. Now the temperature, suppose करो आपने इसको हीट किया और हमने यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा दिया. तो जिस टेम्परेचर में आपका the water will convert into this vapor, that temperature is called as boiling point. इस टेम्परेचर को कहा जाता है boiling point. हर लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है. फॉर एग्जाम्पल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स जब तक सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा वाटर विल नॉट कन्वर्ट इनटू गैस और वेपर. सॉरी, हियर इट इज़ रॉन्ग. इसको रेक्टिफाई कर लेना. दिस इज़ नॉट सॉलिड. हियर वी हैव टू राइट लिक्विड. ये प्रिंटिंग एरर हो गया है. तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है. तो इसको इसी डायग्राम से समझते हैं. अब आप 1 किलोग्राम वाटर ले रहे हैं, आप 1 किलोग्राम वाटर को हीट कर रहे हैं और इस कंप्लीट लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो सिंपली इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड कम्प्लीटली इनटू गैस. कम्प्लीटली का मतलब है जितना लिक्विड है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होना चाहिए? गैस में कन्वर्ट होना चाहिए. तो इसका एप्लीकेशन वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. तो टिल नाउ यू हैव टू स्टडी अप टू ओनली हियर. प्लीज मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर रिगार्डिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अगेन लेटेंट हीट अगेन इज हिडन हीट. ओके, तो कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट इनटू अनदर, तो वहाँ पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. इन केस ऑफ अ क्वेरी जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.